history and genealogy of Gandhi's family has been thoroughly researched and documented, but no scholar has been able to find out much about Kasturba's family background. So today our speaker is going to do justice with this topic. Cyril, all the very best. Go ahead with your talk. Over to you, Mr. Cyril. So I hope my presentation can be seen. Yes, it is. Go ahead. Okay, so good evening everyone. Hope you all are doing good. So आज 2nd October है, as we all are be celebrating Gandhi Jayanti. So wishing you all a happy and peaceful Gandhi Jayanti. As Gandhi Jayanti said, non-violence is not a garment to be put on and off at will. Its seat is in the heart and it must be an inseparable part of our being. So आज 2nd अक्टूबर के दिन जब हम टीवी खोलते हैं या कोई भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो उसके अंदर महात्मा गांधी के जो आज गांधी जयंती उन पे विश किया हुआ है और जो भी गांधी ने जो इंडिया के लिए जो किया था, हर मूवमेंट हो गया, उनका लाइफस्टाइल हो गया, वो सब आज दिखाया गया है. बट आज इस टॉक में मैं महात्मा गांधी के बारे में नहीं, एक फीमेल पर्सनैलिटी के बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने महात्मा गांधी का हर वक्त सपोर्ट किया. सो आप सब लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है. I repeat, behind every successful man there is a woman. So आज के इस टॉपिक पे यानी गांधी जयंती के ओकेशन पे मैं एक ऐसे औरत के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन्होंने महात्मा गांधी का हमेशा सपोर्ट किया, चाहे वो घर में एज एन आइडियल वाइफ हो, चाहे वो बाहर लोगों के सामने हर मोमेंट पे एज ए पॉलिटिकल लीडर हो या जेल में इवन एज ए प्रिजनर भी हो. There was always a woman who supported Gandhi, and that woman is Kasturba Gandhi, Mahatma Gandhi's wife. So the topic for my today's presentation is Ba, the women behind Mahatma. So once again, good evening everyone. Myself Cyril Tom Sunny. Currently, I am pursuing BA program English plus History from Shamlal College, and I am the president of Gandhi Studies Circle of Shamlal College. So and thank you for, first of all, I would like to thank all the members of Sakshiya and the teachers for giving me this opportunity, and to do with the collaboration with the IQAC and the Sakshiya department. So moving on to the topic, as the topic suggests, the Ba, the women behind Mahatma. So here Ba is referred to as Kasturba Gandhi, which means mother. So as this topic, तो मैं इस टॉपिक को 6 ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड करना चाहता हूँ. The first objective will be about her early background. Second, her political career. Third, a true supporter of Gandhi. Fourth, role of Kasturba in involving women participation to the movement. And fifth, the problem she faced. And sixth, her health condition and death. So जब हम कस्तूरबा गांधी की बात करते हैं, बहुत कम लोगों हैं जिनको कस्तूरबा गांधी के बारे में प्रॉपरली अच्छे से पता हो. इवन जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि कस्तूरबा गांधी कौन है, सबको सिर्फ एक ही चीज पता होता है, शी इज द वाइफ ऑफ महात्मा गांधी. और जितने भी हम महात्मा गांधी और उनके नेशनल मूवमेंट्स के बारे में अपने स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट इवन दो कस्तूरबा गांधी ने अपना बहुत एक इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट दिया. शी कोऑपरेटेड विद ऑल द मूवमेंट, शी लेड द मूवमेंट, बट उनके बारे में किसी ने नहीं जाना, ना किसी बुक में भी है. जितने भी हम स्कूलिंग टाइम में हमने महात्मा गांधी के बारे में बहुत कम सुना है, बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन कस्तूरबा गांधी के बारे में बहुत ही कम सुना है. सो आज के इस टॉपिक में आपको महात्मा गांधी कम, कस्तूरबा गांधी के बारे में ज्यादा सुनने को मिलेगा. सो हर ओरिजिनल नेम वाज कस्तूरबाई गोकुलदास कपादिया. She was born on 11th April 1869. So इंडिया में for the remembrance of her birthday, इंडिया में हर साल 11th अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे माना जाता है. एंड शी वाज बोर्न इन पोरबंदर, अ सिटी इन गुजरात. उनके पेरेंट्स का नाम, उनके फादर का नाम गोकुलदास कबादिया था और उनके मदर का नाम ब्रजकुंवीरबा कबादिया था. So as you all know, Kasturba and Mohandas were married at the age of 13. So and the main reason was Kasturba गोकुलदास कपादिया और महात्मा गांधी, जिनका पहले ओरिजिनल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, इन दोनों के पेरेंट्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. सो इनका जो है पहले ही रिश्ता बहुत पक्का हो गया था. when they were at the age of 7 they got engaged, and at the age of 13 they got married. So 13 यानी child marriage. So it is true that child marriage is an evil to the society, बट ये 19th सेंचुरी की बात है, 1882 की बात है. उस टाइम लोगों के अंदर इतना वो नहीं था, नॉलेज नहीं था अबाउट बाल विवाह. सो उस टाइम लोगों का ये पर्सपेक्टिव था कि उनका एक ओपिनियन चाइल्ड मैरिज को लेके ये था कि अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी अपने
पति के साथ ही रहना है, बिताना है, तो क्यों ना अभी से स्टार्ट कर लो, बचपन से स्टार्ट कर लो, ताकि तुम्हें आगे और फ्यूचर जाके कोई भी ऑडनेस या कोई भी प्रॉब्लम ना फील करे. So back to the topic, Kasturba and Mohandas were married in 1882 at the age of 13. So Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi had 4 sons. First son name was Harilal Gandhi, second Manilal Gandhi, third Ramdas Gandhi or Devdas Gandhi. So आफ्टर द मैरिज महात्मा गांधी अपने ऑटोबायोग्राफी में एक चीज मेंशन करते हैं, जिसमें इन हिज ऑटोबायोग्राफी गांधी एक्सप्लेन दैट हिज एम्बिशन वाज टू मेक हर एन आइडियल वाइफ हु लर्न व्हाट ही लर्न. सो महात्मा गांधी का ये एक एम्बिशन था, कि ये एक इच्छा था कि जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी महात्मा गांधी ने अपने स्कूल में सीखा है, वो सब कस्तूरबा गांधी को भी सिखाए. तो इट वाज डिसाइड दैट पूरे दिन कस्तूरबा गांधी सुबह पूरे दिन काम करने के बाद रात को ये लोग पढ़ेंगे. बट ये स्टार्ट हुआ एंड काफी दिनों तक चला, लेकिन एक टाइम के बाद से बंद होना पड़ा, क्योंकि द मेन रीजन वाज पूरे दिन काम करने के बाद कस्तूरबा गांधी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि अब वो रात को पढ़ाई भी करें. एंड शी वाज स्कैर्ड दैट हर स्टडीज माइट अफेक्ट हर रिलेशनशिप विद अदर वुमेन इन द हाउस. सो उनको एक ये डर था कि अगर वो पढ़ लिखेगी तो उनका अंदर ये डर था कि जो घर के बाकी औरतें वो ये सोचेंगे कि ये पढ़ लिखकर हमें डोमिनेट करना चाहती है. So for this reason, Kasturba Gandhi ने अपना पढ़ाई बंद कर दिया था, even though she had learned at least to read and write, even though not properly, but थोड़ा बहुत उन्होंने सीख लिया था. And in 1903, Kasturba Gandhi महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं. So now start the so अभी कस्तूरबा गांधी का पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है. So before starting her political career, I would just like to share a wonderful quote, a beautiful quote with you. खदर की साड़ी, ढका हुआ सिर, माथे पर गोल बिंदी, कलाई में सादी चूड़ियां, इस छोटी दुबली पतली महिला को देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसमें कितनी शक्ति समाहित है. एंड दिस लाइन वाज रिटन बाय आवर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अमिता प्रसाद मैम. एंड ये सच ही है मैम. इवन जब हम देखते हैं एक पतली दुबली औरत, जिन्होंने कभी किसी ने भी नहीं सोचा होगा, इवन एक महात्मा गांधी ने भी नहीं सोचा होगा एक पतली दुबली, वो भी एक औरत, एक ऐसे एक पॉलिटिकल मूवमेंट को एक अंजाम दे सकती है. सो स्टार्टिंग विथ हर पॉलिटिकल कैरियर, इन 1904 शी हेल्प मोहनदास एंड अदर एस्टैब्लिश द फीनिक्स सेटलमेंट नियर दरबन. सो इन 1913 में साउथ अफ्रीका में इंडियन इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो इल ट्रीटमेंट हो रहा था, उनके खिलाफ कस्तूरबा गांधी ने एक प्रोटेस्ट में पार्ट लिया था. फॉर दिस रीजन शी वाज अरेस्टेड ऑन 23 सितंबर 1913 और उनको 3 महीने के लिए सेंटेंस किया था जेल में. So even in prison, she led other women in prayer and encouraged educated women. जितने भी वो prison में educated women थे, उनको ये बोला कि जो भी uneducated women है, उनको पढ़ना लिखना सिखाओ, क्योंकि education was an important thing. And when 1914 को after all the satyagraha movement in South Africa, Mahatma Gandhi और Kasturba Gandhi left South Africa in July 1914 and returned to live in India. Even though Kasturba Gandhi ko due to some complications at her birth, she had chronic bronchitis. But even though इतना खराब जो हेल्थ कंडीशन होने के बाद भी उन्होंने हर प्रोटेस्ट में, हर मूवमेंट में गांधी का ट्रूली सपोर्ट किया, हर सिविल एक्शंस पे सपोर्ट किया, हर प्रोटेस्ट. और जब महात्मा गांधी नहीं भी थे, उस टाइम इन्होंने एज ए फ्रंट लाइनर काम किया, तो उस टाइम लोगों को लीड किया और मूवमेंट. एंड द बेस्ट पार्ट वाज शी आल्सो मेड women to participate in the movement. So she was always referred as Ba or Mother because she served as the mother of the ashrams in India. So in 1917 में जब महात्मा गांधी चंपारण एंड बिहार में पेसेंट मूवमेंट पे इन्वॉल्व थे, उस टाइम कस्तूरबा गांधी mainly worked on the welfare of women in Champaran and Bihar. She taught them about women hygiene, discipline, health, reading and writing. So in 1922, she participated in a satyagraha movement in Borsad, Gujarat. And for even she literally had a poor health. So after every movement, जब भी कस्तूरबा गांधी या महात्मा गांधी कोई भी एक मूवमेंट करते थे, ब्रिटिशर्स उनको जेल में डाल देते थे. So as कस्तूरबा गांधी ने भी काफी सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उनको भी काफी बार जेल में डाल दिया था. So and the third topic is my a true supporter of Gandhi. कि इवन तो जब भी महात्मा गांधी को कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जब जेल में जाते तो हाउ शी सपोर्टेड महात्मा गांधी. सो for Mahatma Gandhi, Kasturba Gandhi was a true companion, a good friend and an ideal wife. So जब मैंने कहा था 1914 में जब कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए थे, एक रिपोर्टर ने कस्तूरबा गांधी से ये पूछा
कि एक औरत होने के बाद भी आप जेल गए, इसकी बेइज्जती आप कैसे सह सकते हो, ये तो आपके धर्म के खिलाफ है. So Kasturba Gandhi gave a best reply, and for me it was the best line that any wife could give to her husband. So उन्होंने ये रिप्लाई किया कि मेरे पति का साथ देना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है. From this we can see that how she supported Gandhi without any objection. चाहे उनको उनके वजह से जेल में भी क्यों ना जाना पड़े, she was always with Gandhi. So as a wife, कस्तूरबा गांधी ने जितने भी सैक्रिफाइस किए थे अपने लाइफ में, वो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना काफी मुश्किल है. She described sacrificed all her vows, including favorite कपड़े, favorite खाना. और इवन जब महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि उनको 1906 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको ब्रह्मचार्य अडॉप्ट करना है, सो उस टाइम कस्तूरबा गांधी ने उनको कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया. महात्मा गांधी ने जो भी डिसीजंस लिए एज ए वाइफ, महात्मा गांधी ने जो भी डिसीजन लिया एज ए वाइफ, वो हमेशा मानती थी उनकी हर बात को, उनका हर डिसीजन को रेस्पेक्ट करती थी. उनके मन के अंदर भी एक वो ये एक बिलीव था कि उनके पति को खुश रखना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है. सो शी नेवर ऑब्जेक्टेड. जब भी गांधी कोई भी डिसीजन लेते, शी नेवर ऑब्जेक्टेड फॉर दैट. सो सपोर्टिंग गांधी इन हिज नेशनल मूवमेंट. अब ब्रिटिशर्स को भी ये पता था कि विदाउट ए लीडर इंडियंस कुछ भी नहीं कर पाते. एंड दिस वाज द मेन रीजन व्हाई ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर मोर देन 20 डिकेड्स. सो जब महात्मा गांधी हर मूवमेंट को लीड करते थे, तो ब्रिटिशर्स उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे. ऐसा उनको पता है कि विदाउट ए लीडर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द इंडियन सिविलियंस. सो उस टाइम कस्तूरबा गांधी ने उनका पोस्ट लिया. उन्होंने लोगों को एनकरेज किया, उन्होंने लोगों को मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया, साथ में लोगों को लीड किया. सो जब भी अगर गांधी जी जेल में जाते थे, शी टुक हर पोस्ट, शी फास्टेड अलोंग विद गांधी. जब भी गांधी कोई भी फास्ट में परफॉर्म करते थे, सो शी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट. शी टुक पार्ट इन ऑल द मूवमेंट्स, प्रोटेस्ट, एंड स्पेशली प्लेड अ मेजर रोल इन इनवाइटिंग women to the movement. So and as Gandhi launched civil disobedience and Quit India movement, Kasturba was a frontliner. जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था, उस टाइम दोनों बार महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया था ब्रिटिशर्स ने. सो एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट लोगों को लीड करने के लिए हमेशा कोई ना कोई चाहिए. सो बीइंग अ वुमेन, शी लेड द एंटायर मूवमेंट. एंड उस टाइम ये भी एक नोट था कि women are only meant to work in the kitchen and look after their household. बट जो नॉट था उन्होंने वो ब्रेक किया कि women और भी काम कर सकती है. व्हेन एंड द मेन पार्ट इज दैट जब कस्तूरबा गांधी खुद पार्टिसिपेट करने लगी, सो उस टाइम बाकी औरतें जो घर पे काम कर रहे थे, उनको भी एक मोटिवेशन आया कि उनको भी हेल्प करना है. So Kasturba played an active role in Borsat Satyagraha of 1923 to 1924 and Bardoli Satyagraha of 1928. And Kasturba was not only concerned with the freedom movement but also with casteism. उन्होंने जो उस टाइम का जो कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम था, जो महात्मा गांधी ने भी ट्राई किया था, वो कस्तूरबा गांधी ने भी ट्राई किया था ताकि और अच्छे से इफेक्ट हो. So as I already said that she was known as the she served mother of she served ashrams as her mother. So the majority of her time she was dedicated helping out and serving in ashram. उस टाइम आश्रम में जितने भी लोग आते थे, जितने भी गेस्ट आते थे, उनको हमेशा सर्व करती थी. And ashram was like an home to Gandhi and was one of the main centers of Indian freedom struggle. So जितने भी जो महात्मा गांधी और उनके साथियां थे, उनके जो अनऑफिशियल मीटिंग्स और जो सीक्रेट मीटिंग्स होते थे, वो यूजुअली आश्रम्स में होते थे. क्योंकि जब पब्लिकली अगर करेंगे तो मीडिया को पता चल जाता था, एंड थ्रू मीडिया ब्रिटिशर्स को भी पता चल जाता था. फॉर इस रीजन हमेशा महात्मा गांधी जो भी सीक्रेट मीटिंग्स हो गए, जो भी अनऑफिशियल मीटिंग्स हो गए, वो हमेशा आश्रम्स में करते थे. और जो मैंने यहाँ पे साइड में जो पिक्चर शेयर किया है, ये सबरमती आश्रम का पिक्चर है. So it was established by Gandhi. First time Gandhi 25 मई 1915 को उनका एक फ्रेंड जीवनलाल देसाई के थ्रू, उनका एक बंगला था, तो उन्होंने ऐसा आश्रम महात्मा गांधी को दिया था. सो आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी एंड जब इंडिया को फ्रीडम मिला 10 मई 1963 को, इसे गांधी मेमोरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है अभी. एंड सबरमती आश्रम में लगभग हर साल लगभग 7 लाख लोगों से ज्यादा विजिटर्स आते हैं. So moving to the next topic, role of Kasturba in inviting women to the national movement. So चाहे कोई भी मूवमेंट हो, इवन कोई भी मूवमेंट हो, मास पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी चीज है. अगर मेरे को आज अगर कोई भी एक मूवमेंट करना है गवर्नमेंट के खिलाफ, एंड मैं डिसाइड करता हूँ कि सिर्फ मैं और मेरे 2-3 दोस्त लोग
कोई भी प्रोटेस्ट करे तो कोई हमारी बात सुनेगा? सो उस टाइम भी मेनली ये प्रॉब्लम था कि मास पार्टिसिपेशन चाहिए था। जब मास पार्टिसिपेशन होगा, जब ज्यादा लोग बढ़ेंगे, तब जाए गवर्नमेंट के अंदर एक प्रेशर बनता है। सो उसी टाइम गवर्नमेंट अगर कोई भी उन पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो अपने डिसीजन चेंज करते हैं। तो नेशनल स्ट्रगल्स में भी, इंडियन नेशनल स्ट्रगल जो भी हुए थे उसमें भी मास पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी था। सो इवन उस टाइम मेन पार्टिसिपेशन ज्यादा था, विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम था, क्योंकि द मेन रीजन वाज इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। सो अभी इवन तो पैट्रियार्की बहुत कम है, बट उस टाइम पैट्रियार्की बहुत डोमिनेटेड था। क्योंकि इवन अगर कोई विमेन पार्टिसिपेट भी करना चाहती थी, बट लेकिन उनका जो मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली है वो अलाउ नहीं करते थे। क्योंकि ऐसा ऑलरेडी सेड दैट उनके अंदर एक बिलीफ है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये बिलीफ है कि विमेन आर मेंट टू वर्क इन द किचन एंड टू लुक आफ्टर द चाइल्ड, लुक आफ्टर द हाउस होल्ड एंड चिल्ड्रन। सो ये एक रीजन की वजह से जितने भी महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग में मूवमेंट्स किए उसके अंदर विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम था। सो कस्तूरबा गांधी, जब कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के साथ हर मूवमेंट कर रही थी, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, उनको अपने पति को सपोर्ट कर रही थी फॉर द मूवमेंट। सो जितने भी औरतें जो थे उनके अंदर भी एक मोटिवेशन जगने लगा कि इफ शी कैन व्हाई कांट अस। सो उनको देखने के बाद जितने भी औरतें जो घर पे काम कर रही थी उन्होंने भी सत्याग्रह मूवमेंट में पार्ट किया। और बाकी जितने भी पार्ट किए थे, तो ताकि जितने ज्यादा लोग बढ़े उतना उतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था। सो शी मेड अदर वुमेन टू पार्टिसिपेट द मूवमेंट। और विमेन पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेस्ट मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाओ। जितने लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट में उनको सर्व करना, और जितने लोग हैं उनको देखभाल करना। और ऐसे इन इवन समटाइम्स जब क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स और जो इंडियन सिविलियंस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्लैश होता है तो काफी लोग घायल होते थे। तो उस टाइम विमेन हैड द मोस्टली जो विमेन थे उस टाइम उनको टेक केयर करना और उनको जो जो भी मेडिकल एड प्रोवाइड करना, ये भी विमेन का काम था। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर, कस्तूरबा गांधी मेनली फोकस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ विमेन, ऐसे एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। So Kasturba and other educated women taught other uneducated women to read and write, and mostly about their hygiene, discipline, etc. So तो हर women को invite करने के लिए कस्तूरबा was going from town to town and village to village on foot or by bullock cart, visiting workers and urging women to join the protest movement, picket liquor shops or spin and wear khadi. So एक इंसिडेंट होता है कि जब महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह के लिए निकलते हैं, तो उस टाइम महात्मा गांधी का फर्स्ट सन मनीलाल गांधी की वाइफ जो है, तो वो रोने लगती है कि जब महात्मा गांधी जाते हैं। तो कस्तूरबा गांधी एक लाइन्स शी टेल्स दैट आवर मेन आर वॉरियर्स, वी आर वॉरियर्स वाइफ्स, वी मस्ट गिव देम द मेन करेज, इफ वी आर ब्रेव दे विल बी ब्रेव, सो इफ वी आर ब्रेव दे विल बी ब्रेव, एज शी सेड। सो अगर हम ब्रेव रहेंगे तो मेन भी ब्रेव रहेंगे। सो दिस वाज द बेस्ट लाइन शी सेड। And moving to the fifth topic, that the problem she faced. महात्मा कस्तूरबा गांधी के अपने लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स फेस किए थे, मेनली ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे शेयर किया है। फर्स्ट, शी हैज टू सैक्रिफाइस ऑल हर वॉव्स। सो इसमें उन्होंने अपना फेवरेट कपड़ा, फेवरेट खाना, कपड़े के टाइम इवन शी हैड टू थ्रो ऑल हर जितने भी साड़ीज थे वो सब उन्होंने फेंका, और उन्होंने मेनली खादी का जो साड़ी था वो उन्होंने मेनली प्रेफर किया। सो एंड द बेस्ट थिंग वाज शी ऑल्सो sold all her ornaments. जो उस टाइम एंड इवन अभी भी ऑर्नामेंट्स आर लाइक एन आइडेंटिटी टू अ वुमेन। सो पहले आपने भी सुना होगा ये कहावत, गहने एक औरत की पहचान होती है। सो इन दिस विदाउट एनी ऑब्जेक्शन महात्मा जो कस्तूरबा गांधी ने अपने सारे ऑर्नामेंट सोल्ड किए थे, क्योंकि द मेन रीजन वाज मूवमेंट, जो भी महात्मा गांधी मूवमेंट कर रहे थे, सो उस मूवमेंट के लिए इनकम वाज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो उसके लिए पैसे चाहिए, और जितने भी लोग महात्मा गांधी के साथ मूवमेंट कर रहे थे वो कोई बिजनेसमैन या लैंडलॉर्ड नहीं थे, नॉर्मल वर्कर्स थे। चाहे वर्कर्स हो गया, स्लेव्स हो गए, अनटचेबल्स हो गए, फार्मर्स हो गए। सो इन सबके पास इतने पैसे नहीं होते थे। सो जितने भी जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे वो सब उनको सेल करके वो अपने नीड्स को मीट करने के लिए किया था। सो एज आई ऑलरेडी सेड दैट शी हैड अ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। Even though having a chronic bronchitis, she always supported Gandhi. And महात्मा गांधी ने जब फास्ट किया तो उनके साथ भी कस्तूरबा गांधी ने भी फास्ट किया था। So after every fast, after participating in all the movement, day by day उनका chronic जो bronchitis था वो worse होते गया दिन भर दिन। So as I already mentioned, fast which continued for days made her health condition worse. So according to Tushar Gandhi, he is the great grandson of Mahatma Gandhi. उन्होंने किताब लिखा था द लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूर माई बा।
सो इस किताब में तुषार गांधी ने कस्तूरबा गांधी के मेनली 3 प्रॉब्लम्स को उन्होंने कोट किया. फर्स्ट वाज द डेथ ऑफ पुतलीबाई गांधी. So those who don't know that पुतलीबाई गांधी कौन है, she was मदर ऑफ महात्मा गांधी, यानी कस्तूरबा गांधी की मदर इन लॉ. सो उस टाइम जब पुतलीबाई गांधी जब उनका देहांत हो गया था, तो शी फेल्ट कम्प्लीटली लोनलीनेस एंड वो बहुत अकेले फील कर रही थी. एंड उस टाइम का सिनेरियो अलग था. लाइक अगर हम जब थोड़ा बहुत अकेलापन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, तो हम सीधा थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज करते हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा मोबाइल यूज कर लिया, थोड़ा टीवी देख लिया. बट उस टाइम में कंडीशन कुछ और ही था. उस टाइम ना रेडियो था, ना ये टीवी था. सो उस टाइम जिसके साथ उनका पूरा दिन का गुजारा होता है, अगर वही अगर ना मिले, उनसे अगर बात करने को ना मिले, तो दिस मेड हर रियली सैड. और जब पुतलीबाई गांधी का जब मौन कर रही थी, उसी टाइम बिफोर मनीलाल गांधी शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. सो जब वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, सो बच्चा उस टाइम डिलीवरी के टाइम ही मर गया था. सो ऑलरेडी पुतलीबाई गांधी का डेथ, और फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड उसका भी डेथ. एंड उस टाइम ये था कि जो यूजुअली उस टाइम जितना अब आजकल जितना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो उस टाइम बच्चे का प्रेगनेंसी के टाइम मरना और डिलीवरी के टाइम मरना बहुत कॉमन चीज था. बट एक माँ के लिए वो 9 महीने पालना, 9 महीने गोद में रखना, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर. एंड द थर्ड रीजन ही शेयर्स दैट महात्मा गांधी का पहला जो बेटा था, मनीलाल गांधी, ही बिकेम कम्प्लीटली अल्कोहलिक. सो महात्मा गांधी और मनीलाल गांधी के बीच में काफी सारे क्लैशेस हुए थे. सो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, हमेशा कस्तूरबा गांधी इनके बीच में फंसती थी. सो फॉर ऑल दिस रीजन, जैसे तुषार गांधी ने अपने बुक में लॉस्ट डायरी ऑफ कस्तूरबाई बा में मेंशन किया है, दिस वर द रीजन दैट मेन प्रॉब्लम कस्तूरबा गांधी हैज फेस्ड. एंड द सेकेंड, बी.आर. नंदा ने गांधी एंड हिज क्रिटिक्स पे एक बुक लिखा था. सो अकॉर्डिंग टू बी.आर. नंदा, कस्तूरबा फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. फर्स्ट प्रॉब्लम ये था कि कस्तूरबा गांधी अपने बच्चों को कोई भी chaos जो हो रहा था उस दिन, नेशनल मूवमेंट्स हो रहा था, उन सब में नहीं फंसाना चाहती थी. सो शी वांटेड हर चिल्ड्रन टू बी स्टडिंग इन यूरोपियन कॉलेजेस या यूरोपियन स्कूल्स हो गए. बट महात्मा गांधी ने उनको रेसिस्ट किया, क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी खुद लोगों के सामने ये बता के चल रहे थे कि टू बॉयकॉट, टू अबॉर्ट ऑल द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. तो उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ था. अगर वो बाकी लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉरेन गुड्स एंड सर्विस को यूज करना बंद करो, बट वो अपने बच्चों को अगर यूरोपियन कॉलेजेस में एडमिशन प्रोवाइड करेंगे, तो उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ था. सो एंड द सेकेंड रीजन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट ऑल ऑफ हर सेविंग्स वर यूज्ड फॉर कंडक्टिंग द मूवमेंट. जैसे मैंने पहले बोला था, महात्मा गांधी के साथ जितने भी लोग मूवमेंट में थे, सब नॉर्मल वर्कर्स थे. सो उन सबके पास जो अमाउंट होता था मूवमेंट कंडक्ट करने के लिए, वो नहीं होते थे. सो हर मिडिल क्लास फैमिली में लोग हमेशा सेविंग्स बहुत करते हैं. सो जितने भी सेविंग्स जो कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी ने किया था अपने यूथ टाइम में, सो वो सब which all were used for conducting the movements, even her gold ornaments. So and the third problem he shares is that she was forced to serve the guest at the ashram. So ये critic point of view है. Like मैंने पहले कहा था, she always served the ashram without any objection. She was like the mother of the ashram. But critics का ये कहना है कि she was forced to serve the guest at the ashram. So there's an incident in movie, और तुषार गांधी के अपने बुक में भी उन्होंने मेंशन किया था. इवन अभी अमिताभ मैम ने भी वो मेंशन किया था कि जब महात्मा गांधी ने टॉयलेट साफ करने के लिए बोला था, शी रेसिस्टेड. एंड द मेन रीजन वाज, उस टाइम टॉयलेट साफ करना हरिजन्स का काम था, मेनली द अनटचेबल्स, उनका काम था. सो जब महात्मा गांधी ने कहा कि उनका जो भी टॉयलेट्स उनको साफ करना है, तो शी रेसिस्टेड. सो तुषार गांधी लेकिन ये शेयर करते कि इवन तो शी रेसिस्टेड, लेकिन बाद में उन्होंने किया, बट अपने मन से नहीं कर रही थी. कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से ये कहा, या तो मन से करो या रहने दो. कस्तूरबा गांधी उस टाइम कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं करना फिर. तो उस टाइम महात्मा गांधी काफी गुस्सा होते हैं और वो कस्तूरबा गांधी को अपने घर से बाहर निकाल देती है. एंड द फोर्थ वाज, शी हैड ऑब्जेक्शन व्हेन महात्मा गांधी चोज ब्रह्मचर्य. जब महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य चूज किया, तो शी हैड ऑब्जेक्शन. एंड इट वाज आल्सो सेड दैट इट इज आल्सो सेड दैट कि उनको, और शी वांटेड मोर चाइल्ड, बट अपने फैमिली प्रेशर में आने, क्योंकि उस टाइम ये था पैट्रियार्कल सोसाइटी में हमें अपने पति को मानना ही पड़ता था. सो दैट वाज द रीजन.
और जब एक चीज है, तुषार गांधी का बुक जो है एंड गांधी एंड क्रिटिक्स, बी आर नंदा का बुक है, और मैम का जो आर्टिकल था, इन तीनों आर्टिकल और बुक में एक चीज कॉमन था कि महात्मा गांधी बहुत जिद्दी थे. सो मैं जैसे मैम के आर्टिकल में एक, जैसे मैम ने कहा था, इट्स अ फिक्शनल आर्टिकल, जैसे सारे लोग ऐसे कस्तूरबा गांधी के सराउंडिंग में बैठे हैं और वो ये करे क्वेश्चन पूछती है. सो एक में मैंने ये पूछा कि क्या सही में महात्मा गांधी जिद्दी थे? तो ये एक पॉइंट है कि जब कोई भी जो डिसीजंस लेने से पहले महात्मा गांधी कुछ भी सोचते नहीं थे. उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके डिसीजन से दूसरे लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है. सो इवन तो महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि वो उतने पैट्रियार्कल डोमिनेटेड नहीं है, वो अपनी वाइफ और जो भी विमेन के बारे में वो बात करते हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं. बट व्हेन आई रीड ऑल दिस, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि महात्मा गांधी भी एक काइंड ऑफ पैट्रियार्कल डोमिनेटेड थे. सो एज उनका ये एक एटीट्यूड था कि जो भी वो घर के हेड है, तो जो भी डिसीजन वो लेंगे वो सबको मानना ही है. एंड जब मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने एक सोर्स देखा. जब कस्तूरबा गांधी को 2 बार हार्ट अटैक्स आए थे, तो उस टाइम कस्तूरबा गांधी कंप्लीटली बेड रिडन हो गए थे. सो द इंग्लिश डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब पेनिसिलिन. अब पेनिसिलिन एक इंग्लिश मेडिसिन है. सो महात्मा गांधी ऑलरेडी इंग्लिश सर्विसेज और जो उनके जो गुड्स है उनके खिलाफ थे. सो महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी के अंदर पेनिसिलिन इंजेक्ट करने से मना कर दिया था. सो द बेस्ट पार्ट वाज दैट इवन दो आई एडमायर गांधी अ लॉट, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे भी लगा यार ये महात्मा गांधी ने सही नहीं किया. जब महात्मा गांधी को खुद मलेरिया हुआ था, उन्होंने इंग्लिश टैबलेट्स का यूज किया था, और जब उनका अपेंडिक्स रिमूव करना था उस टाइम भी ही सॉट द हेल्प ऑफ इंग्लिश डॉक्टर्स. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे ऐसा लगता है कि ये महात्मा गांधी ने सही नहीं किया. और जब उनको प्रॉब्लम्स हुए तो उन्होंने इंग्लिश डॉक्टर से हेल्प किया. जब अपनी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का किया. इवन तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया था, बट इट वाज काफी लेट एंड तब तक उनका कंडीशन और खराब हो गया था. सो मूविंग टू माय लास्ट टॉपिक, हर हेल्थ कंडीशन एंड डेथ. So as I've already discussed, she suffered from chronic bronchitis and it became worse when she had pneumonia. So even though हर मोमेंट, और जब भी महात्मा गांधी फास्ट करते थे, सो कस्तूरबा गांधी भी फास्ट करते थे उनके साथ. सो आफ्टर ऑल डेज फास्ट विच लास्ट फॉर डेज, और आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द मूवमेंट इवन विद अ बैड हेल्थ कंडीशन, उनका जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस था और वो और खराब हो गया था और वर्स हो गया था. सो इन जनवरी 1944 गांधी सफर 2 हार्ट अटैक्स. कस्तूरबा गांधी को 1944 में 2 हार्ट अटैक्स हो गए थे. उसके बाद वो कम्प्लीटली बेड रिडन हो गए थे. So after all the as I have said that about the Ayurvedic treatment, उसके बाद महात्मा कस्तूरबा गांधी थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी and again she participated in the movement. So movement में participate करने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको again detain कर दिया जेल में. So the cell she was put in was dirty and she fell ill. So उनको जो सेल में डाला था वो काफी ऑलरेडी अनहाइजीनिक था. सो जस्ट इमेजिन दैट उनको पहले से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, 2 हार्ट अटैक्स, उसके ऊपर से अनहाइजीनिक एक एरिया में रहने के कारण उनका कंडीशन और खराब होता है. सो आफ्टर जब उनका कंडीशन और खराब हुआ तो कस्तूरबा गांधी को आगा खान पैलेस इन पूना, वहां पे महात्मा गांधी को भी ऑलरेडी डिटेन किया था, उनको वहां पे भेज दिया था. So on evening of 22nd February 1944, she breathed her last at Agra Khan Palace detention camp on Bapu's lap. So and she was cremated in the detention camp on 23rd February 1944. So जब कस्तूरबा गांधी का ऐसे जो बॉडी था वो जब ऐसे लेट था, तो उस टाइम महात्मा गांधी ने एक सेंटेंस बोला, and that was, her husband sat watching the funeral pyre till the end, and when asked by someone to go rest, he remarked, "This is the final parting, the end of 62 years of shared life. Let me stay here till the cremation is over." That evening after the prayer, he remarked, "I cannot imagine my life without Ba." So Gandhi wrote Kasturba was not behind him in any respect. So if anything, she stood above me, but for her unfailing cooperation, I might have been in the abyss. She helped me to keep wide awake and true to my vows. She stood by me in all my political fights and never hesitated to take the plunge. In the current sense of the word, she was uneducated, but to my mind, she was a model of true education. So I was engaged in a grim wrestle with death,
During my Aga Khan Palace fast, I literally came out of the death's jaws. But she shed not a tear, never lost hope or courage, but prayed to God with her all her soul. So this was all my topic, and I would like to conclude by saying that कस्तूरबा गांधी, जैसे लाइक मैंने पहले मैम का जो कोट शेयर किया था, एक दुगली पतली, वो भी एक औरत ऐसा कुछ एक मोमेंट करेगी, किसी ने नहीं सोचा था. सो आफ्टर बीइंग ए विमेन, उस टाइम, वो भी उस टाइम जब एक मेल पैट्रियार्की जब बहुत ज्यादा था, इवन विमेन को फोर्सफुली उनको अपने घर पे रखा जाता था और उनसे ये कहा जाता था कि दे आर मेंट टू वर्क इन द किचन एंड लुक आफ्टर देयर चाइल्डहुड. सो इवन इतना जो डिस्क्रिमिनेशन के बाद औरतों के अंदर खुद भी एक फील यही होने लगा कि यार ये प्रोटेस्ट वगैरह हमारी बस की नहीं है, दैट वी आर ओनली मेंट टू वर्क इन द किचन एंड इन द हाउस होल्ड. सो बट जब सारे औरतों ने कस्तूरबा गांधी को देखा, सब अपने आप को एक मोटिवेटेड हो गए कि वो कर रही तो हम क्यों नहीं कर सकती. सो उस टाइम जो नॉट था ना, ये जो नॉट था कि ये प्रोटेस्ट वगैरह लड़कियों की बस की नहीं है, सिर्फ वो घर और बच्चे संभाल सकते, वो एक नॉट को थोड़ा कस्तूरबा गांधी ने. सो एंड इन लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब अच्छे से चल रहा था, फिर बाद में जब कॉल ऑफ करने का एक टाइम है, जब चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे 22 पुलिसमैन वेर बर्न्ड अलाइव. सो उस टाइम इवन जितने भी गांधी के सपोर्टर्स थे, इंक्लूडिंग नेहरू, उन सब लोगों ने ये कहा था कि इसे कॉल ऑफ नहीं करते, जो लोग गए उनको तो गए, लेकिन हमें मूवमेंट जरूरी है. बट महात्मा गांधी का ये एक आइडियोलॉजी था कि एवरी लाइफ मैटर्स, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो. सो उस टाइम जब सब लोगों ने उनको डीमोटिवेट किया कि ऐसा मत करो, बट देयर वाज ओनली वन वुमन. कस्तूरबा गांधी एक ऐसी औरत थी जिनको महात्मा गांधी पे पूरा भरोसा था, एंड शी ऑलवेज बिलीव दैट अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस कोई दे सकता है, सो and that is Mahatma Gandhi. So here I end my topic, and once again I would like to thank all the staff members and the students of the Sakshya Society for giving me this opportunity, and thank you. Thank you so much, Mr. Cyril. Really a well-researched talk, and I have to admit you're one of the great speakers we have got till now. Thank you so much for really great talk. Many congratulations to you too. So now, as I read in a book by Aparna Basu on Kasturba Gandhi, that means on Ba, where there was written that once addressing an early morning meeting, Gandhi was once asked by his friend why Kasturba is absent, who has mistaken her for his mother. So Gandhi replied, I became an orphan, and for 30 years she has filled the place of my mother. She has been my mother, my friend, nurse, cook, bottle washer, and all these things. And Mr. Cyril's talk has talked about all these efforts and her roles. Very well, Mr. Cyril. Now it's time to take up some questions. The very first question is by Mr. Ashish Raj. He has asked you, did Mahatma Gandhi supported Kasturba Gandhi in her life as much she supported him in his life? Okay, so अभी जब आप कंपेयर करते हैं, एज अ हस्बैंड महात्मा गांधी लिटरली फेल्ड, क्योंकि जो भी ऐसे हस्बैंड जो भी उनको अपने महात्मा गांधी के लिए, कस्तूरबा गांधी के लिए जो भी ऐसा हस्बैंड करना था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जबकि शी सफर्ड अ लॉट. बट अकॉर्डिंग टू जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, आजकल का सिनेरियो नहीं था उस टाइम. उस टाइम जब हम कस्तूरबा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने कभी महात्मा गांधी को ऑब्जेक्ट नहीं किया. सो मे बी ये एक रीजन हो सकता है कि कस्तूरबा गांधी का जो खुशी था वो अपने पति को सर्व करने में ही था. सो आई बिलीव दैट इवन दो महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी के लिए कुछ भी नहीं किया, बट शी वॉज ऑलवेज हैप्पी. उनको अपने पति को सर्व करना ही सबसे बड़ा ड्रीम था, उनका सबसे बड़ा एम्बिशन था. थैंक यू. Thank you so much, Mr. Cyril. Once again, congratulations to you for the talk. Very well answered. Now it's time to call our guest of honor again, Dr. Amita Prasad ma'am, to get her views on the topic, on the talk, and Mr. Cyril's point of view, his presentation. Over to you, ma'am. We would like to hear you more, ma'am. Thank you very much, Cyril. Let me just congratulate you. It's a very well researched and a lot of good photographs also you could put, so it made the presentation very good. And I like the way that new generation presents, and you were very good, and there was no hesitation in many things. Though you are young now, and there is a lot of other maturity will be also required, which I'm sure you will get it.
I think there are a lot of things which we have to understand, and you spoke very well on the times of then and now. You made a very good presentation there. The life of Kasturba, if we look at it, it is a life of devotion and sacrifice, which was, like during that time, there were a lot of religious practices, and the women were told to follow their men as their gods, nothing less. So, if you look at Ba's life, Kasturba's life, it will be a epitome of that time's mentality. But I'll say that she was a feminine core. If we look at the what is a feminist, not feminist, feminine, not feminist, feminine core, which is full of love and sacrifice. Sometimes, when people ask me what is your biggest problem, I always say this is the problem of Sita's burden on the woman. The Sita followed Ram to the Vanvas, and most of the women have to follow their men. I think that is one thing which Kasturba also had to feel. But what very well you brought out the problems and constraint of that time in your presentation. So the feminine core of Kasturba was love and sacrifice. One question which was asked to you was, would Gandhi had supported so much to Kasturba? I will say that Gandhi was a very obstinate man. He kept on experimenting with truth. Look at the disruption in Kasturba's life. So many disruptions she had to face. She had to face disruption when he went abroad to study. Then she had to sell all her gold to make him, like go, because they in their caste, many people had not gone abroad. So they were boycotted, and she had to sell all her jewelry then also. Then in the Phoenix ashram, it was a very tough life. It was a very dry place. So Gandhi kept on experimenting, and Kasturba kept on giving him support. But I'll say that is not a point of weakness of Kasturba or Gandhi. Gandhi could do so much because he has such a big support from her. And I think you brought it out, though you could have maybe spoken more on that, but the time was a constraint, I suppose. So I'll say that she was the only one to oppose Mahatma. She to make Gandhi, to make Monia, he was known as Monia, as Mohandas. From Monia to Mohandas to Mahatma, I think Kasturba played a very, very big role. And you in your talk with six, chapters in the overall, you have brought it out very well. I'll say that her life was full of love, devotion, and sacrifice, personal sacrifice, and it cannot come if you don't have strength of character. I really admire Kasturba for her strength of character. And you also brought it out about the Phoenix, about the way she treated in the 1919 Champaran movement. There is a very good thing, not good, I mean, it is a very poignant thing. When Gandhi saw that there are very few women coming, so he asked Kasturba to go to the village and see why so few women are coming to Champaran participation in Satyagraha. When she went, she realized that the people were so poor that the women had very few saris among them. So they used to share saris. So only one woman could go. Between among say 3 or 4 women, there were only 1 or 2 saris. So only 2 women could go, and 2 had to stay back because there was no good something to wear. So when she saw this plight, she understood the poverty in the country, and she totally supported Mahatma Gandhi in the field of making Atmanirbhar. We call Atmanirbhar Bharat now, but it was Atmanirbhar that time also it was supported then. Other thing I like to also say that you also brought it out very well. The challenges of Ba. Perhaps you could have added one chapter on challenges of Ba. You have talked about sacrifices and problems of Ba. But what challenges she had? Her biggest challenge, I'll say, was her husband only. He had so many friends, so many viewpoints, so many experiments. So her husband, he dedicated life to freedom struggle. When he came to India in 1915, he dedicated his life to that. He gave up all foreign clothes. In fact, when Kasturba had gone with Mahatma to Chennai, Madras then, and she wanted to buy very expensive clothes for her grandchildren. She wanted to buy some gift which Mahatma never allowed. So she was very upset, and this has been, documented also. Because, it takes time to follow somebody's ideals. If it is your own ideal, you can do it. But Kasturba had to, follow. So one was her challenge was her husband itself. Second thing is that conversion of her son.
the elder son, he became a Muslim, and it was a very big challenge because there was a lot of problem between the elder son, Harilal, and Hiralal and Mahatma Gandhi. And the third one was that, like giving up all the things which were dear to her. You said it very well, Cyril, that she had to give up good clothes, she had to give up her good habits, and she came from a very rich family. She had to give up a lot of things. It is not easy. Like I said, if you have your own ideals, you can do it. But if you have to follow somebody, it is difficult. But I'll say that in spite of everything, she is a symbol of woman empowerment. Why we are talking about her today and we are not talking about Mahatma? Because all of us feel, and your Gandhi Circle, study circle also feels that the woman behind Mahatma, the making of Mahatma would not have been possible if an empowered woman was not behind Mahatma, supporting him all the way from being Munia to Mohandas to Mahatma, and it is not easy. Sometimes when we feel, we look at it and we think that her life was consumed by, Mahatma's popularity. So many women were also, like meeting him, like Mirabai. Somebody, I saw the question about Mirabai, Miraben. Somebody has asked a question why Miraben was more popular than Kasturba. Because Ba chose a life. It is not easy to choose a life to be behind somebody. It really requires a lot of strength. And Cyril, you brought out the strength of Kasturba very well. I really enjoyed your talk, and I'm sure others would have also enjoyed. Uh, I hope that when you grow up, you will understand Kasturba slightly better about her struggles, about her strength, and about her empowerment. During those times, she became a symbol of resistance. She became a symbol of women who have to come out. And mind you that she was not educated, but she ran the ashram like like all the finances were looked after by her. So it cannot be happening if a person is not strong. You need to be a very strong person, whether man or woman. A person has to be strong. So thank you once again, Cyril. You brought out a lot of good points, and I'm sure the more you grow up, you will understand her better, and all of you will also understand her better about the role she played, about the like beings behind the scene. It can be only done by a very empowered and a very strong person. Everybody cannot play that role of being the, जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर हर आदमी नहीं बन सकता है. हर आदमी को ताजमहल बनना होता है, नींव का पत्थर बनना बड़ा मुश्किल है. कस्तूरबा ने दिखाया कि उनका जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर था वो नींव के पत्थर में भी था. सो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू वंस. थैंक यू. Thank you so much, ma'am, for adding so much to our knowledge. We are highly lucky and privileged. I can't tell you how lucky we are to hear you and get so much knowledge from you about Kasturba Ba today. Ma'am, I would like to answer your question that what are your thoughts about Graduate Scholars Talk series as an administrator? You heard Cyril, this is a platform we provide to our speakers. Ma'am, what is your thought about it? No, I'm very glad that it is happening. And a lot of colleges are doing, because see, it makes you think, it makes you feel for the thing. Because suppose this group was not there, perhaps Cyril would have talked something about pop culture or something. But this group made him talk about Kasturba, which he has not seen, who have not felt. It is so many generation before him. And I think it's a very good idea. And most of the colleges do it now. They do the MUN also, like mock United Nations. Some of the colleges do it, especially engineering colleges. And it gives you all to be a leader. Public speaking is very important when you want to put your point of view. And like we say these days that one of the very good skill is required to be employability is required. And I think talking, researching, putting your point of view to others, it is a very good thing. And it is better than a debate. In debate only two point of view, and then but here it is a larger group and larger dissemination. I think it's a very very good idea, and I think it develops your skill also as a public speaker, as looking into the policy, because Cyril must have read at least 4 or 5 books to research on Ba, finding good pictures, making a presentation. So I think it's a very good idea, and I must congratulate Professor Manish on this to encourage you all like this. Yeah.
Thank you so much, ma'am. Thank you. We are really grateful to have you. And thank you so much for appreciating us and encouraging us. Thank you so much for enlightening us. We are really happy and empowered by your words. Now, moving ahead, starting an initiative is hard, but moving forward with consistency is a lot hard task. So, moving ahead, we have the 87 Graduate Scholars Talk Series speaker, Miss Bhavya. I'm happy